Hello, Joe. Let's read the given question. The question says a thermal power plant produces electric power of 600 kilowatt at 4000 volt, which is to be transported to a place 20 kilometer away from the power plant for consumers' usage. It can be transported either directly with a large cable of large current carrying capacity or by using a combination of step up and step down transformers at the two ends. The drawback of direct transmission is the large energy dissipation. In the method using transformer, the dissipation is much smaller. In this method, a step-up transformer is used at the plant site so that current is reduced to a smaller value. At the consumer end, a step-down transformer is used to supply power to the consumer at the specified lower voltage. It is reasonable to assume that power cable is purely resistive and transformer are ideal with power factor unity. All the current and voltage mentioned are RMS values. In the method using the transformers, assume that the ratio of number of turns in the primary to that in the secondary in the step-up transformer is 1:10. If power to the consumer has to be supplied at 200 volt, the ratio of the number of turns in the primary to that in the secondary in the step-down transformer is option A 200:1, option B 1 is 150:1, option C 100:1, option D 50:1. So to understand this question, we need to understand about the concept of transformer. So basically, transformer is the mechanism through which we transfer the voltage. ठीक है ना? Transformer, and it works on the principle of mutual induction. Mutual induction. So let's suppose we have यहाँ पे just we will summarize it up. We have plates of soft iron जिसको हम कोर भी कहते हैं on which copper winding is been there is winding shown. ठीक है, तो यहाँ पे ये winding के through we send an alternating current. ठीक है, and यहाँ पे भी we have some windings. इसे हम कहते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, यहाँ पे हम कहते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग्स. ठीक है, सो सेकेंडरी वाइंडिंग्स आर दिस एंड दिस आर द कॉपर प्लेट्स. ठीक है, तो यहाँ पे this is the input side voltage, this is the output side voltage we are getting. तो यहाँ पे अगर हम मान लेंगे नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इज NP एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज NS. सो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं सिंस इट इज़ एन ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाइड, तो वी कैन से कि ऑल्टरनेटिंग करंट से डायरेक्शन चेंज होगा करंट का, ड्यू टू विच अ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द कॉइल विल गेट चेंज, राइट. और ये मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ से एसोसिएटेड विल बी लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल. तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो फील्ड लिंक विद सेकेंडरी विल ऑल्सो चेंज और दिस विल इंड्यूस EMF, right. So according to Faraday's law we can write induced EMF in primary circuit can be given by the expression minus of NP d phi by dt. अब यहाँ पे we need to be careful, जो सिंगल कॉइल से जो लिंक्ड फ्लक्स है, एक कॉइल की हम बात करें, सो दिस इज द वन कॉइल. इससे अगर हम देखें फ्लक्स लिंक्ड इज फाई. टोटल प्राइमरी साइड पे देखें तो NP नंबर ऑफ टर्न्स है, तो NP इंटू 5, तो दिस विल बी द केस इंड्यूस EMF. सिमिलरली ES को हम लिख सकते हैं NS d phi by dt. वी हैव अज्यूम्ड के एक कॉइल का जो एरिया है वो सेम है. ठीक है ना, सो फ्लक्स लिंक विल बी ऑल्सो द सेम, इसलिए हमने यहाँ पे 5 लिखा है. बट ओवरऑल जो फ्लक्स इंड्यूस्ड है ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड आर डिफरेंट. ठीक है, तो वो चीज़ में हमें क्लियरिटी रखनी है. सो नाउ वी कैन टेक द रेशियो EP by ES विल बी इक्वल्स टू NP अपॉन NS. अब यही रिजल्ट वी विल बी यूजिंग टू सॉल्व द क्वेश्चन, बट ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट the concept of step up transformer and step down transformer. So step up क्या करता है बेसिकली, ये हाई वोल्टेज लो से लो वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट कर देता है. सिमिलरली अगर स्टेप डाउन की बात करेंगे हम, सो स्टेप डाउन जो है, स्टेप डाउन कन्वर्ट्स हाई वोल्टेज टू लो. ठीक है ना, जैसे नंबर ऑफ टर्न्स का खेल है. अगर नंबर ऑफ टर्न्स हम प्राइमरी में बढ़ा दें, सेकेंडरी में कम कर दें, तो इट विल बी स्टेप डाउन, और अगर सेकेंडरी में बढ़ा दें, प्राइमरी में कम कर दें, तो स्टेप अप हो जाएगा.
ठीक है. सो दिस इज द थिंग वी नीड टू बी क्लियर विथ. स्टेप अप में अगर हम देखें ध्यान से, तो स्टेप अप में हमने जैसे बोला नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज मोर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी. ठीक. एंड स्टेप डाउन की अगर हम बात करेंगे, सो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी. ठीक है. एंड वाई दिस इज सो, बिकॉज वी नो कि स्टेप अप में जो वोल्टेज है सेकेंडरी एंड पे इट इज हाई, सो ई एस विल बी ग्रेटर देन ई पी. एंड सिमिलरली हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ई एस इज लेस देन ई पी, and to be precise it is EMF, right? So we are writing it with small e, as we have denoted it with small e, so हमने ये लिख दिया. So बस यही principle we will be using to analyze the given question. अब हमें बोला गया थर्मल पावर प्लांट है एंड वो कितना पावर प्रोड्यूस कर रहा है, 4000 वोल्ट. ठीक है ना. एंड वी हैव बीन गिवन दैट के पावर प्लांट के नज़दीक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा हुआ है. एट द कंज्यूमर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज यूज्ड. In this method, a step-up transformer is used at the plant site. So पहले हम plant site की बात कर लेंगे. So plant site पे step-up transformer है. So we can write NS upon NP. Formula तो same ही होगा. ES upon EP, right? So अगर हम देखें तो प्रोड्यूस कितना हो रहा है, 4000 वोल्ट. एंड नंबर ऑफ टर्न्स हमें गिवन है. Number of turns in the primary to that of secondary in step up is 1:10. So primary to secondary basically ये 10 given है हमें. ठीक है. ES अगर हम देखें, so ES कितना प्रोड्यूस हो रहा है, कितना हमें सेकेंडरी एंड पे मिलेगा. ठीक है ना. तो बेसिकली हमें बोला गया है कि थर्मल पावर प्लांट ने कितना प्रोड्यूस किया, 4000 वोल्ट. ठीक. तो ये है हमारा 4000 प्राइमरी एंड पे. ठीक है. तो इतना वोल्टेज हमें इनपुट मिल रहा है. आउटपुट इसका देख सकते हैं हम, ई एस विल बी इक्वल्स टू 40,000 हो जाएगा. ठीक है. तो देख सकते हैं हम कि कितना ज़्यादा ये बढ़ गया है जस्ट वाइंडिंग के चेंज करने से, 40,000, राइट. सो फ्रॉम हियर वी कैन सी ये रिजल्ट को लेट्स से हमारा इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं हम इसको. ठीक है. अब ये जो हमें आउटपुट मिला है यहाँ पे ई एस फ्रॉम स्टेप अप, ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा प्राइमरी में ऑफ स्टेप डाउन. सो ये कंज्यूमर साइड आ गया. अब कंज्यूमर साइड में ये जाएगा स्टेप डाउन में. ठीक है ना. ये इनपुट हो जाएगा अब हमारा. तो हम अगेन लिखेंगे ई एस अपॉन ई पी विल बी इक्वल्स टू एन एस अपॉन एन पी. तो एन एस अपॉन एन पी हमें फाइंड क्या करना है, द नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी टू सेकेंडरी, यानी कि एन पी अपॉन एन एस फाइंड करना है. तो हम इसको उल्टा लिख देते हैं. यस. तो ई पी क्या होगा हमारा, ई पी विल बी 40,000, राइट. क्योंकि 40,000 हमने सप्लाई करना है. हमें चाहिए कितना आउटपुट, हमें चाहिए 200 वोल्ट, राइट. कंज्यूमर एंड पे कितना रिक्वायर्ड है, इट हैज़ बीन गिवन इफ द पावर टू बी सप्लाइड एट 200 वोल्ट पे हमें आउटपुट चाहिए. सो 200 निकल रहा है, दैट विल बी इक्वल्स टू एन पी अपॉन एन एस. सो फ्रॉम हियर वी कैन से ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू कैंसल एंड इट इज कमिंग आउट टू बी 200/1. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन जो कि मैच हो रहा है ऑप्शन ए के साथ. So I hope you understood the solution. All the best.